Hello friends, today we discuss about the structure of pollen grain. On a question asked as a structure of pollen grain for 2 marks, explain the structure of pollen grain. Sometimes with diagrammatic sketch is 3 marks. Short note on pollen grain is 2 marks. Draw well level diagram of pollen grain 2 marks. What is mean by pollen grain 1 mark? Define anthesis or dehiscence 1 mark. What is a sporopollen in 1 mark? What is mean by the exine or intine? What is component which can be made by the intine for 1 marks? In this way, the marking scheme is depend on the sentences or the explanation of the pollen grain. Sometimes ask as a multiple choice question as fill in the blanks, match the pairs or puzzle sentences. We have to discuss the structure of pollen grain as 1.10. First, we have to know that what is meant by the pollen grain. Pollen grain, also known as to be the microspore. Micro means so smallest in size as compared to the ovule or as well as the megaspore. Spore is one of the germinating structure. So pollen grain is also known as to be the microspore, which is unicellular. एक सेल होता है जिसमें एक ही न्यूक्लियस बोल सकते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है. सो यूनिन्यूक्लिएट. ये खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकता. सो इट इज़ कॉल्ड नॉन मोटाइल. देन कभी ये स्फेरिकल शेप में पाया जाता है तो हल्का सा कभी ये ओवल शेप में पाया जाता है. और हैविंग एज द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम का सेट होता है. सो हाउ टू डिफाइंड एज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल, यूनिन्यूक्लिएट, स्फेरिकल और ओवल haploid structure. Then in previous video we have to discuss about the structure of the anther. So in structure of anther we have to know that the microsporangium is to be the covered with the help of a thickened single layer of the cells is the tapetum, and tapetum is the nutritious layer which synthesize within itself as a nutrition and provide nutrition to the sporogenous tissue and developing microspores. Where it is the sporogenous tissue we have to just discuss in previous class or video. Sporogenous tissue which can be filled within inside the sporangium or pollen sac. So simultaneously the tapetum nourish sporogenous tissue and maybe convert itself into transform itself into a microspores. Tapetum is also contributes in the formation of sporopollenin, a component of pollen exine. जिस समय माइक्रोस्पोर बनता है यानी पोलन ग्रेन बनता है या बन रहा होता है तो पोलन ग्रेन की जो अपर वाली लेयर होती है उस अपर वाली लेयर की वजह से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन को एक प्रोटेक्शन मिलता है. तो उस अपर वाली लेयर को एक्साइन कहते हैं. और इस एक्साइन बनाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो स्पोरोपोलेनिन नाम का एक केमिकल होता है. एक तरह का ये एक सिक्रेटरी मटेरियल होता है जो टैपेटम सिक्रेट करता है. और जिस समय पोलन ग्रेन बनता है उसकी बाहरी सतह पर उसे लेयरिंग करना शुरू कर देता है. जितनी लेयरिंग मोटी होती है उतनी प्रोटेक्टिव नेचर उसे प्रोवाइड करती है. सो इट इज़ कॉल्ड द एक्साइन. An exine which is simultaneously we have to say that made up by the sporopollenin. The sporogenous tissue may undergo mitosis. The newly divided cells functions as microspore. मदर सेल विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर. जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो नरिश होने के बाद खुद को बदलना शुरू करते हैं. तो बदलते समय सबसे पहले माइटोसिस में जाता है. हमें पता है कि माइटोसिस में
एक सेल अपने आप से डिवाइड होके दो सेल को जन्म देती है। ये जो दो सेल है जो न्यूली डिवाइड होके स्पोरोजिनस टिश्यू की एक एक सेल से जन्म लेती है, उसे MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है, जो कि माइटोसिस से जन्म लेती है। तो वी हैव टू नो दैट इट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ट्वाइस इन। At maturity, MMC, that is microspore mother cell, again undergo meiosis to form 4 haploid microspores and or pollen grains. जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मैच्योर हो जाती है या मैच्योरिटी लेती है, तो वैसे ही वो फिर से अपने आप में मियोसिस में चली जाती है। और मियोसिस में हमें पता है, हम जानते हैं कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स को जन्म दिया जाता है। तो बिल्कुल इसमें से ही हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस कैरी करती है और 4 माइक्रोस्पोर्स को जन्म देती है जो कि इमैच्योर होते हैं, और हमेशा ये हाफ में इनकी क्रोमोसोम्स बट जाती है, इस वजह से हैप्लॉइड नेचर की होती हैं, और इन्हीं को आगे चल के पोलन ग्रेन कहा जाता है। यंग माइक्रोस्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल टेट्रैड। जो जस्ट इमैच्योर माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो सबसे पहले एक जगह एक ही सेल की 4 टुकड़ों में प्रेजेंट होते हैं। तो एक ही सेल की 4 टुकड़ों को उस समय टेट्राहेड्रल टेट्रैड कहा जाता है। टेट्रैड का मतलब 4 सेल का एक बंच। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? सो जैसे हमने कहा कि अभी अभी माइक्रोस्पोर जन्म लेते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाउ टू डिफाइन द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस ऑफ डिप्लॉयड MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, सो इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कभी कभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ पूछा जाता है। The spores, that is microspores or pollen grains, are released towards the anther or anther wall is called the anthesis or dehiscence. We just study by the diagram. यही जब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर पूरी तरीके से बन जाते हैं, तो बनने के बाद वो धीरे से बाहर रिलीज़ होना शुरू हो जाते, पर रिलीज़ होते समय एंथर या फिर एंथर की जो वॉल होती है, वो एंथर वॉल बर्स्ट यानी फोड़ देता है और ज़ोरों से बाहर पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को एंथेसिस या डेहिसंस कहा जाता है। Here in a side view we have to see a diagram. It is an just anther which have to know that in a previous period the 4 pollen chambers, such a 4 pollen chambers simultaneously which are divided 2 in a one lobe and 2 in a another lobe, यानी 2 चेम्बर जो होते हैं पोलन सैक या पोलन चेम्बर, वो एक लोब में एक डिवाइडेड पार्ट में होते हैं, और बाकी बचे 2 पोलन सैक या जिसको स्पोरेंजियम हमने नाम दिया या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, पोलन सैक पोलन चेम्बर, वो दूसरे डिवाइडेड लोब में दूसरे पार्ट में होते हैं। साइमल्टेनियसली जिस समय में पोलन टेट्रैड बन जाता है, उस समय ये दोनों पोलन चेम्बर के बीच का जो मिडल लेयर्स होती है, वो मिडल लेयर्स धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं और 2 पोलन सैक पोलन चेम्बर्स एक साथ जुड़ जाते हैं और साइमल्टेनियसली पोलन टेट्रैड 4-4 पोलन ग्रेन को जन्म देना शुरू करते हैं। जैसे ही 4-4 पोलन ग्रेन सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, उसी समय में एंथर वॉल जहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है या एक तरह का उसमें पैसेज रास्ता बन जाता है, थिनेस्ट हो जाती है, वहाँ से बस्ट होके पोलन ग्रेन्स बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी इस डायग्राम को पूछा गया है, ड्रॉ डायग्राम फॉर द डेहिसंस और एंथेसिस। तो ये जो डायग्राम है या फिगर है, ये हम डेज्ड एंथर करके पढ़ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स डायग्राम में दिखाया गया है, वहाँ पर एक पैसेज बना यानी एंथर वॉल फूट जाती है, टूट जाती है और वहाँ से धीरे धीरे पोलन ग्रेन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। दैट इज फॉर द डेहिसंस और द एंथेसिस। देन
पोलन ग्रेन इज द डबल लेयर वॉल। पोलन ग्रेन जो होता है वो डबल लेयर वॉल होता है, यानी 2 लेयर से बना होता है। उसे स्पोरोडर्म कहते हैं। डर्म का मतलब स्किन और स्पोर की ऊपर वाली स्किन, सो स्पोरोडर्म नाम दिया जाता है। द आउटर लेयर ऑफ पोलन वॉल इज थिक, हाईली रेजिस्टेंट, यानी रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इज कॉल्ड एक्साइन, made up of complex non-biodegradable substance called sporopollenin. It may be smooth or rough. जैसे इसके हमने अभी अभी कहा कि पोलन ग्रेन 2 वॉल से बना होता है, या पोलन ग्रेन की जो आउटर कोटिंग होती है वो डबल लेयर की होती है। बाहर वाली जो कोट होती है, बाहर वाली आउटर लेयर जिसे हमने कहा है, तो आउटर वॉल भी बोल सकते हैं, वो मोटी होती है। डायग्राम से हम देखेंगे ये रिजिड होती है, मजबूत होती है, इजीली टूटती फटती नहीं है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी अगर पोलन ग्रेन्स कई दिनों के लिए, कई घंटों के लिए अगर एनवायरनमेंट में भी चले जाए तो जल्दी सड़ते नहीं हैं, या फटता नहीं है, या स्पॉइल नहीं होता। सो एक तरह का कॉम्प्लेक्स मटेरियल भरा होता है जिसका नाम हमने कहा है स्पोरोपोलेनिन, यानी स्पोरोपोलेनिन नाम की इस मटेरियल से एक्साइन बना होता है, जो कि टैपेटम सिक्रेट करते रहता है जिस समय में पोलन ग्रेन्स जन्म ले रहे होते हैं। इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से एक्साइन कभी कभी बहुत ही स्मूथ होती है, सॉफ्ट नेचर की लेयर होती है, तो कभी कभी रफ, खुरदरी, स्पाइनी लाइक कांटे समान आ जाती है। तो इसी बेस पर हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, वन हु कॉल्ड द स्मूथ वॉल पोलन ग्रेन और मे बी एज द रफ वॉल पोलन ग्रेन। यहाँ पर जैसे हमने दिखाया है कि एक स्मूथ वॉल पोलन ग्रेन है और दूसरा रफ वॉल पोलन ग्रेन। स्मूथ वॉल पोलन ग्रेन वाइन पॉलिनेटेड प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि हवा की झोंके से या हवा की बहाव से जल्दी ही स्मूथली वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते चला जाए। और जो रफ वॉल वाली पोलन ग्रेन्स होती है वो इंसेक्ट की फीदर्स में, पैरों पर या बॉडी के ऊपर इजीली स्टिक हो जाए। इस वजह से जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उसमें रफ वॉल पोलन ग्रेन पाया जाता है। स्मूथ वॉल कैसे होता है, रफ वॉल कैसे होता है, हम डायग्रामेटिक स्केच से देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्साइन? एक्साइन प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस और रिजिडिटी टू द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्साइन जो होती है पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले, या हम सीधा बोलते हैं कि पॉलिनेशन से पहले, पॉलिनेशन की टाइम तक डिकम्पोज ना हो, स्पॉइल ना हो, तब तक ये जो एक्साइन है उस पोलन ग्रेन को डिकम्पोजिशन से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। Exine is interrupted or thin at one or more places which look like small spores called jump pore, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी कभी यही एक्साइन कई कई जगह टूटी जैसी नज़र आती है, इंटरप्टेड, या थिनेस्ट हो जाती है, पतली हो जाती है, और एक छोटा सा गड्ढे की तरह नज़र आता है, एक छोटे से छेद की तरह नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द जम्प पोर। सो again we have to discuss about some another points regarding to the pollen grain. Pollen grain mostly uniporate, which is found in a monocot, have a single germ pore, or triporate have 3 germ pores, which are found in a dicot or dicotyledons. यानी पोलन ग्रेन इसी जम पोर की बेस पर 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, जिसे पोलन ग्रेन एज यूनिपोरेट या ट्राइपोरेट कहा जाता है। जिस पोलन ग्रेन में सिर्फ एक जम पोर होता है उसे यूनिपोरेट कहते हैं। हमेशा यूनिपोरेट पोलन ग्रेन मोनोकोटिलिडॉन्स में पाया जाता है, और कभी कभी कुछ पोलन ग्रेन्स को 3 जम पोर्स पाए जाते हैं तो उसे ट्राइपोरेट कहा जाता है। ये ट्राइपोरेट हमेशा डाइकोटिलिडॉन्स में पाया जाता है। The second one layer or the inner layer of pollen wall is intine. Intine कहलाया जाता है, composed of cellulose or pectin,
It helps to encloses inner protoplasm of pollen with single haploid nucleus. जो इनर लेयर होता है उसे इंटाइन कहते हैं. जो सेलुलोज एक मजबूत और इलास्टिक नेचर के सब्सटेंस से बना होता है जिसे सेलुलोज कहेंगे. उसी के साथ उसे मजबूती देने के लिए पेक्टिन होता है. पेक्टिन नाम का एक प्रोटीन है. जो दोनों कंपोज्ड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती उसमें आ जाती, इलास्टिसिटी आ जाती है. इट हेल्प्स टू एनक्लोजेस इनर प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन विद सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस. पोलन ग्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड भरा होता है यानी जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या प्लाज्मा मटेरियल, जिसमें एक हैप्लॉइड नेचर का न्यूक्लियस होता है, उसे वो इस इंटाइन से बांधे रखता है, एनक्लोज करता है. और इंटाइन नेचर से बहुत थिनेस्ट होती है एज कम्पेयर टू द एक्साइन. एक्साइन बहुत ज़्यादा थिकेस्ट होती है बिकॉज इट इज़ एन प्रोटेक्टिव इन नेचर. जर्म पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. जब यही पोलन ग्रेन्स बाहर रिलीज हो जाते हैं और पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन होने के बाद जब ये स्टिग्मा पर जर्मिनेट होना शुरू कर देता है तो उस समय जर्म पोर से जर्मिनेशन थ्रू एक पोलन ट्यूब निकलना शुरू हो जाती है जो कि मेल गमीट को अपने साथ बहा के फीमेल गमीट तक पहुंचाती है, ट्रांसफ़र करती है. तो इसके लिए जर्म पोर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है. यानी जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब रिलीज होती है और वही एक जरिया है जो मेल गमीट को फीमेल गमीट तक पहुंचाता है. यहाँ पर कुछ डायग्राम देखेंगे हम जिसको हम पढ़ेंगे. सो यहाँ पर मैंने एक पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाया है जिसमें हमने स्मूथ वॉल यानी इसकी जो आउटर वॉल है जिसे मोटी नेचर की ठीक होती है, एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन से बनती है, स्पोरोपोलेनिन टेपेटम सिक्रीट करता है. इनर वाली जो लेयर होती है दूसरी जिसे इंटाइन कहा गया, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनता है. और बीच में हैप्लॉइड नेचर का न्यूक्लियस होता है. अंदर जो फ्लूइड या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. और हमने कहा कि एक्साइन कहीं पर थिनेस्ट हो जाती है और एक पोर छेद जैसा बन जाता है, उसे जर्म पोर कहते हैं. तो दैट इज़ मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पर एक्साइन स्मूथ नेचर की होने की वजह से यानी सॉफ्ट और क्लीन होने की वजह से, फ्लैटेंड और क्लीन होने की वजह से, सॉफ्ट होने की वजह से इसे स्मूथ पोलन ग्रेन कहा जाता है. और सिर्फ एक सिंगल जर्म पोर होने की वजह से यूनिपोरेट पोलन ग्रेन कहा जाता है. यानी ये जो डायग्राम है ये हमें स्मूथ यूनिपोरेट पोलन ग्रेन का नज़र आ रहा है. आगे देखेंगे. यहाँ पर भी हमने पोलन ग्रेन दिखाया है. आउटर वॉल थिकेस्ट है एक्साइन, इनर वॉल थिनेस्ट होती है, इलास्टिक नेचर की होती है, इंटाइन. यहाँ पर गिन सकते हैं जर्म पोर दिख रहा है 1 2 3. 3 जर्म पोर्स है तो नेचुरल है. ये ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन है. और बाहरी वॉल जो एक्साइन है ये एक्साइन स्मूथ नेचर की है, फ्लैटेंड है और सॉफ्ट नेचर की, इस वजह से ये स्मूथ और ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन है. और एक डायग्राम हम स्टडी करेंगे. यहाँ पर कुछ चेंजेस है. अभी अभी जो हमने 2 डायग्राम स्टडी किया उसकी कंपैरिजन में डायग्राम थोड़ा सा अलग है. यहाँ पर जो एक्साइन नज़र आ रहा है वो थिकेस्ट तो है लेकिन खुरदरी कांटे समान स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर नज़र आ रहे. तो दैट इज़ मे बी द रफ पोलन ग्रेन, जिसकी वजह से इस पोलन ग्रेन को रफ कहा जाता है. यहाँ पर भी हम एक्साइन देख रहे हैं जो रफी नेचर की, स्पाइनी नेचर की है. इंटाइन देख रहे हैं, इनर थिनेस्ट वॉल. न्यूक्लियस नज़र आ रहा है जो हैप्लॉइड नेचर का है. साइटोप्लाज्म है अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जिसे हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है. यहाँ पर भी हम जर्म पोर देख रहे हैं. जर्म पोर गिन सकते हैं 1 2 3. 3 जर्म पोर होने की वजह से ये ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन है. तो हम जैसे हमने स्टडी किया है कि जो यूनिपोरेट होता है वो मोनोकोटिलिडॉन में होता है और जो ट्राइपोरेट होता है वो डाइकोटिलिडॉन में होता है. थैंक यू.